एक मोहतरमा है, वो कहती है चाकू तेज रखना, पता नहीं कब जरूरत हो जाए। तेरा नाम क्या है? मोहम्मद नाम है तेरा, आधार कार्ड दिखा। हिंदूज हु डोंट वोट फॉर मी हैव मिया ब्लड इन देयर वेन्स। दिक्कत ये हो गई है सर कि कश्मीर, रोहिंग्या और फलस्तीन जैसे भी मुद्दे को आप मुस्लिम एंगल से देखते हैं। नहीं सर, ह्यूमन राइट एंगल से देखिए। Only 50% of Muslims who complete middle school are likely to complete secondary school education compared to 62% at a national level. Muslims comprise 14% of the population, but their representation in higher education is very low. Only 5.5% Muslims are in higher education. The number of Muslim women in higher education is 13 out of 100, while 23 for all India level as per NSSO 2018. As per NSSO 2018, Muslims are lowest represented in shared salaried class employment. Muslims account for mere 2.67% of directors and senior executive among BSE 500 companies. In 2022, only 21 students, that is 5% of the total students, were selected for the civil service examination, IAS, IPS, IFS, etc. 2021, 4.07, 2020, 5.8%, 2019, 4%, 2018, 2.64%. Nearly 46% of Muslims are self-employed in urban India, the largest as compared with any other community, according to data from Government's National Sample Survey organized 2013. The human security of Muslims are the Human Rights Watch report and many other similar reports reveal that there has been a constant increase in the attack on lower class Muslims in India and in recent times. In the last few months, new pattern has emerged to evict and bulldoze properties in Halwani, the state of Uttarakhand, Lishmipur, district of Assam, that belongs to mostly minority community, particularly Muslim of or lower class. अब्दुल वहाब साहब ने जब रेजोल्यूशन के बारे में बोलने खड़े हुए, मुझे लगा कि एक विस्तृत फलक पर वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक झिझक मैंने देखी, एक संकोच सा देखा। मैं डर नहीं कहूंगा, एक झिझक, एक संकोच, एक रिलक्टेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। सर, ये आज देश के मुसलमानों में अधिकांश की यही हालत है। एक झिझक, एक संकोच, एक रिलक्टेंस कि डर और खौफ के इस माहौल ने इस देश में, जो मैंने झिझक की बात की अब्दुल वहाब साहब की, वो झिझक जो मैंने कहा कि वो मैं अपने स्टूडेंट्स में देखता हूं। सर, मुश्किल हालात से आते हैं, पीएचडी के लिए मेरे पास सब्जेक्ट देते हैं और मैं देखता हूं कि वो सब्जेक्ट कुछ और देना चाहते हैं, लेकिन चुनते हैं ऐसा विषय जो उनके हिसाब से उनके मुस्लिमनेस को बचा ले। ये क्यों हो रहा है सर? सर, मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है मीरान हैदर, वो जेल में है। सर, अभी हाल में आपने देखा होगा कि एक माननीय उच्च न्यायालय का एक ऑब्जर्वेशन आया कि आप स्केप कोट बना रहे हो, चाहे उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, सरदिल ईमान हो, गुलफिसा हो, शिफाउर रहमान हो, या मीरान जो अपने स्टूडेंट का मैंने जिक्र किया। सर, जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट के आ रहे हैं, अक्सर होता है क्विटल होता है, हो जाता है, इनके ऊपर कुछ नहीं था। 8 साल बाद सर, दुनिया में इजाद नहीं हुई वो विधा कि उसके 8 बरस लौटा दिए जाएं। The students in Mangalore or Karnataka were prevented from wearing hijab in the name of ensuring secular dress codes. Sir, this government has been always harping on the fact that they want to ensure that the minorities become part of the mainstream. What is the effect of it, sir? I would just tell you, what was the effect of such a hijab ban?
more than 1 lakh Muslim girls backed out of government colleges in Karnataka alone. And if you look at the statistics of the enrollment of Muslim girls, especially, it has come down drastically. It should have been the other way. If at all you want to empower the Muslim society, if at all you want to bring them to the mainstream, their number should have gone up, sir. But by creating such a controversy, what has actually happened in this country is that the number of Muslim girls getting enrolled for higher education is depleting, coming down. सर मेरा ये कहना है कि जितने भी ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट देखें आपको स्पष्ट तौर पे मिलेगा देश की और बाहर की मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम्स, ये क्यों बढ़ रहे हैं 8 वर्ष में 9 वर्ष में अचानक मेरे देश में? ये गांधी, नेहरू, आजाद, अंबेडकर का देश है। हमने पूरे के पूरे इकोसिस्टम में इतना जहर भर दिया है। जहरीली हवा पहले तो उनको नुकसान करती है जिसके लिए आपने हवा छोड़ी है, लेकिन सर हवा वतन की सरहद को नहीं देखती है, धर्मों की सरहद को नहीं देखती है। वो जहर इधर भी लौट के आ रहा है। इस देश के इतिहास में, इस देश की परंपरा में भेदभाव इसके चरित्र में, इसकी चिति में, इसके मूल पिंड में रहा ही नहीं है। उसी विरासत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में जब आयुष्मान योजना शुरू की गई और जन औषधि केंद्र शुरू किया गया, तो क्या किसी 9,000 या 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर क्या किसी से पूछा जाता है कि आप प्रमाण पत्र दिखाइए, आप किस धर्म से हैं? जन औषधि केंद्र पर एक ही चीज पूछा जाता है, आपको किस जेनरिक मेडिसिन की आवश्यकता है, वो मेडिसिन हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन गरीबों तक उस दवा को, उन गरीबों तक उस भोजन को, उन गरीबों तक बैंक अकाउंट तक पहुंचा रहे हैं। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास नहीं है तो और क्या है? ये विपक्ष में बता दें। सच्चर कमेटी के 400 पृष्ठों का डॉक्यूमेंट पढ़ जाइए, उसके दूसरे चैप्टर को पढ़िए। वो क्या कहता है कि अस्पतालों में किसी खास धर्म के लोगों को जगह नहीं मिलती, स्कूल के प्रिंसिपल खास धर्म के लोगों को बाहर कर देते। क्या इस देश में एक भी ऐसे इंस्टांस को, घटनाओं को सच्चर कमेटी प्रस्तुत नहीं कर पाई? लेकिन सच्चर कमेटी ने डिवीजन के बीज को बोने का काम किया। जो काम पीरपुर कमेटी किया, शरीफ कमेटी किया, अबुल फैजल कमेटी किया और उसके पहले हंटर कमेटी किया, उसी की विरासत को लेकर सच्चर कमेटी चल रहा था। उस विरासत को हम खारिज करते। जावेद भाई बता रहे थे कि स्कॉलरशिप का बजट कम हो गया। आपको मालूम है सभापति महोदय, एक ही व्यक्ति 4 स्कॉलरशिप लेता था। नाम को का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठा के एक व्यक्ति को 4 स्कॉलरशिप मिलता था। भारत सरकार ने ऐसे लोगों को अलग किया तो बजट तो कम हो गए। Maulana Azad National Fellowship is stopped. And what is the reason, sir? Reason they say, oh, there is overlapping. Same names are being repeated, or one person may get another, same person may get multiple scholarship. So one scholarship from Maulana Azad Fellowship, another scholarship. Sir, how can a union government come up with such a silly, irrelevant, vague reason, sir? Was it stopped because of the name Maulana Azad? Because it is in the name of Maulana Azad? हमारे मंतव्य, हमारे रुझान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 20% आबादी के प्रति अगर हमारा दृष्टिकोण उचित नहीं है, हमारे दृष्टिकोण में समग्रता में लेने का अगर भाव नहीं है, तो मैं समझता हूं कि चाहे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लें या आलीशान महल खड़े कर लें, एक मुल्क के रूप में हम तन्हा महसूस करेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।